In the first part of this conversation, we explored the science of pain and why effective treatment requires looking beyond just the site of injury. If you missed that, click here to check that out. Pain medicine is constantly evolving. As our understanding of the nervous system grows, so do the tools available to help patients find relief. Cannabinoids are now being studied around the world for their potential role in pain management, sleep, anxiety, and quality of life. To help us understand where the science stands today, we continue our conversation with Dr. Dhruv Bibra as one of the early adopters of cannabinoid-based medicines in India. I would like to speak about something of particular interest to us and that you have been an early adopter of in India, cannabinoid medicine. Cannabinoids are a new therapeutic category. They're also an old therapeutic category, but they're also a new, let's say, therapeutic category. I'm curious, what prompted you to explore cannabinoid medicine in the first place? Because it's not a standard, let's say, intervention, right? It is still not something which is part of every pain physician's practice. तो आपको कहाँ से दिलचस्पी आई इस पर्टिकुलर थेरेपी में? जब भी कोई नया ड्रग आता है ना पेन के लिए, तो वही फीलिंग आती है जो आप बाइक राइड पे आती है. यू आर एक्साइटेड बिकॉज यू वांट दैट थ्रिल कि यार कुछ आया है, इस बार तो पेशेंट को हो जाएगा. बट एट द सेम टाइम यू हैव दैट एप्रीहेंशन कि होगा कि नहीं होगा, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए. द फर्स्ट टाइम दैट आई हर्ड इट वाज इन 2017. I happened to travel for conferences, I speak and present my papers. So I was in, if I'm not wrong, in Copenhagen. It was an European Congress where there was an debate between one group talking about opiates, pros and cons, versus another group talking about cannabinoids. I think, correct me if I'm wrong, the earliest country to use cannabinoids as for pain or for medical use was Israel and Canada. So there were doctors from this country and then there were Europeans and they were having a good discussion. That was the first time that I heard कि अच्छा resurgence हो रहा है. And after I think 2018 or 19 we had the first products, people started coming in. So पेन के पेशेंट के साथ ना बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ होती है. वैसे तो हर पेशेंट फॉरगिविंग होता है, बट पेन का पेशेंट ना बहुत फॉरगिविंग होता है, बहुत फॉरगिविंग, बहुत प्यारे, बहुत कुछ सिखाते हैं वो. सो द मोमेंट समथिंग कम्स एंड यू ट्राई टू काउंसिल देम, और वो बेचारे इतने डेस्परेट भी होते हैं कई मामलों में, स्पेशली जब जिनके अंदर मैंने इन्हें यूज किया है, दे आर रेडी टू यूज इट, और वो वेल इन्फॉर्म्ड भी होते हैं, तो दे आर. सो इस वजह से अराउंड दी आई थिंक 2018-19 वी स्टार्टेड यूजिंग दैट बेबी स्टेप्स की आप करके देखो. दैट वाज आवर इनिशिएशन फॉर कैनाबिनॉइड्स एंड लेट्स सी कि कैसा होता है. एंड टचवुड पेशेंट्स हैव बीन वेरी ऑनेस्ट एंड अगेन फॉरगिविंग. कईयों को उतना रिजल्ट नहीं मिला एंड तो फॉरगिविंग भी रहे, बट ऑनेस्ट ओपिनियन भी दिया, जिससे वी गॉट अ क्लियर आइडिया दैट येस दिस ड्रग इज अ गुड ड्रग टू हैव. बट येस अभी भी बहुत एप्रीहेंशन, बहुत कुछ है, बट येस सो दैट इनिशियल थ्रिल, द चैलेंज was there, but patient have been fine. हमने mentioned किया था that at the Congress where there were these, I suppose, doctors who had been practicing cannabis medicine Israel में, Canada में, was the debate and is the debate still in the medical physician fraternity about substitution of opioids? Is that still where the primary sort of use case of cannabinoids is there? And Hindustan में भी ये मतलब valid issue है. We hear about the US and the opioid crisis. We don't hear about it in India so much in news media. It seems US में there is an epidemic of opioid, abuse effectively happening. So is that still where the conversation is at, or has it evolved beyond? We tend to copy a lot from the West. ठीक है ना? हम अभी opioid को explore ही कर रहे थे. ठीक है? Explore in the sense कि formulations like tablets थी, इंजेक्शंस थे, अभी लॉलीपॉप्स आ रहे थे, पैचेस आ रहे थे. उनका इनिशियल अभी ना धीरे धीरे कंपनीज ला रही थी, लेकिन जब वहां पे आग लगी तो हमारे यहाँ पहले ही आग लग गई. आई नो, सी आई बाय नेटिवली आई एम फ्रॉम पंजाब, सो आई नो द ड्रग मेनेस इन ऑल बॉर्डर स्टेट्स. right? उसके अलग reasons है, but all border states there is a addiction issue and everything. And so if I may, when we speak about addiction, especially let's say Punjab border states, it's mostly opioids which are the most prevalent. That is difficult to say, but yes, they are definitely there because उसके दो reason है. एक तो cheap है
ठीक है, आराम से उग सकती है। अच्छा, इधर भी बनता भी है, हाँ, अफगानिस्तान वगैरह में, तो बिल्कुल वो बिल्कुल बिल्कुल वो निकालना आसान है। तो दैट इज वन थिंग कि वो एक था। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि वो जब तक हम पोटेंशियली उसका कर सकते थे, वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन में आने लगा, और गवर्नमेंट ने उसको क्या किया है कि उसको डी इंसेंटिवाइज कर दिया है। तो जो रिटेल बेच के लिए कि वो इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं, जैसे इन अ प्लेस लाइक दिल्ली मुश्किल से 3 या 4 लोग हैं जो करते हैं, who are prescribing, who have prescribed, who have actually the medicine. मैं प्रिस्क्राइब करके क्या करूंगा? मेरे लिए तो आसान है, बट मुझे फॉर्म भरना पड़ेगा। दैट इज ऑल्सो आई कैन डू, बट उसके पास जाके लेकर आना एंड एवरीथिंग। तो उस प्रॉब्लम की वजह से ना, वो हम कभी उसको पूरी तरीके से हमने किया, बट जो उसके फेंटनिल आ रहे थे या वो हुआ है, वहां पे आग लगने की वजह से कुछ ड्रग्स हमारी इंडिया में, मतलब कंट्री में रिलीज ही नहीं हुए, और कईयों में जो रिलीज हुए वो हम पोटेंशियली मतलब देते, और वो सब हुआ ही नहीं। तो पहले बहुत ज्यादा ही जल्दी रिस्ट्रिक्शंस लगने शुरू हो गए। ओके, ठीक है ना? तो दैट इज वन। सेकेंड थिंग इज टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओपियोइड, क्योंकि आप अगर बिल्कुल हमारी बॉडी पे बात करें तो दोनों के रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में हैं जी, राइट। पर अगर हम देखें तो जो पोटेंसी है वो ओपियोइड्स की डेफिनेटली ज्यादा है। तो देयर आर सर्टेन कंडीशन जहां पे सिर्फ ओपियोइड काम करेगा। कैनाबिनॉइड्स के साथ एडवांटेज क्या है, क्योंकि वो थोड़ा सा स्लीप एंड अदर चीजें ज्यादा हैं, तो हेयर थोड़ा 360 डिग्री पेन को देख सकता है। आई सी दैट ग्लोबल सॉर्ट ऑफ पर्सपेक्टिव कि आपकी थोड़ा स्लीप को भी कर देगा, थोड़ा मूड को भी कर देगा, ऑल ऑफ दैट थिंग हो जाता है। तो दो, अब मैं ये नहीं मुझे उस टाइम उन्होंने किया और वो व्हाटएवर उनका फॉर्मेट था, बट वन अगेंस्ट द अदर इज नॉट द करेक्ट कंपैरिजन। ऑल राइट, उसकी अलग वो है, इसकी अलग यूज है। सो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि दोनों को कंपेयर नहीं करना चाहिए। आई पर्सनली फील बहुत कम कंडीशंस होंगी जब इसकी जगह इसको ले सकते हैं, इसकी जगह इसको ले सकते हैं। So there is not that substitution is not there. They have their own very specific use cases. हाँ. Challenges around access, especially हमारे देश में आज की तारीख में opioids के साथ. Because मैंने कुछ physicians को सुना है that fentanyl was available, now it's not available. बिल्कुल नहीं है। It was very very beneficial for some patients in some use cases. Also, sir, cancer physicians have said कि भाई यहाँ दिल्ली आ जाते हैं, मान लीजिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट पे उनका इलाज भी हो जाता है, but they might be terminally ill or otherwise they might be late stage, पर वो वापस अपने अगर घर पे जा रहे हैं या फार्मेसीज पे जा रहे हैं, दवाई नहीं मिलती है। बिल्कुल नहीं। So it is like a double-edged thing, right? That we have responded to a overseas crisis, हाँ जी, not looking at what the disease burden हमारे यहाँ सिंपल है जी। एक कॉन्सेप्ट होता है ब्रेक थ्रू पेन का कैंसर में ना, तो उसके लिए एक सिंपल सी 60 रुपए की आती थी फेंटनिल लॉलीपॉप जी, ठीक है ना। वो एक कंपनी बनाती थी, जब से सब कुछ हुआ है वो बंद हो गई है। And that could have been given across the board for general population also. You don't need some specialized. नहीं, उसमें लॉलीपॉप is just there. तो अगर आपको ब्रेक थ्रू पेन हो रहा है तो उसके लिए है। और ना सिर्फ पंजाब, आप पंजाब से लेके हरियाणा तक वो धीरे धीरे फैल रहा है। इनिशियली व्हाट हैपेंड वाज दैट इनिशियली सदर्न स्टेट्स वर फाइन बिकॉज वो बॉर्डर इश्यूज वहां पे नहीं है, लेकिन व्हेन आई टॉक टू माय कलीग्स डाउन साउथ आल्सो, सो दे आर आल्सो फीलिंग द पिंच। आई सी, वहां पे भी ओपियोइड मिलने में, उसमें करने में, जबकि वहां पे कुछ डॉक्टर्स बहुत पायनियरिंग वर्क भी कर रहे हैं ओपियोइड्स को लेके, बहुत कोशिशें करते हैं, बट कुछ हो जाता है, कुछ गलत डिपिक्शन, कुछ मतलब एक गलत डेथ, कुछ सुसाइड, कुछ हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, एंड देन वो इतना डेमोनाइज हो जाता है कि वो सब रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, एंड देन इट गोज इनटू अ वेरी नेगेटिव स्पाइरल, एक नेगेटिव स्पाइरल हो जाता है। But to characterize therefore opioids versus cannabinoids and cannabinoids being safer than opioids, that's almost a wrong way to compare the two therapies, the two interventions. हाँ जी, वो अलग है जी। देखिए, ये चीज मैं बहुत क्लियरली कहना चाहता हूँ, और उसमें मेरे के अंदर कोई डाउट नहीं है कि वो एक अलग सेट ऑफ ड्रग्स है, वो एक अलग सेट ऑफ ड्रग है। इसको उठा के उधर और उसको उठा के इधर नहीं किया जा सकता। हाँ ठीक है, कुछ कंडीशन है, चलो इसकी जगह ये दे दो या वो, दैट इज समथिंग डिफरेंट, बट अदरवाइज आई डोंट थिंक कि आप बिल्कुल इसको हटा दो या उसको हटा दो। हमें ओपियोइड्स का एक ऐसी ड्रग है जो माय फादर बीइंग अ डॉक्टर आल्सो, he has been using from the 1960s. वो इतनी पुरानी ड्रग है, वो जो रिच एक्सपीरियंस है वो हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते फॉर अ ड्रग विच इज लाइक 5-6 years। और दूसरा एक चीज और भी है इसके अंदर, मतलब unfortunately the first exposure to lot of people with cannabinoids has been like a street drug, recreational drug। हाँ, तो वो अलग रिवर्स करने का एक अलग चैलेंज है। तो दोनों के चैलेंजेस भी अलग हैं, दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी अलग है, दोनों के क्लियर कट इंडिकेशंस भी अलग हैं। थोड़ा ओवरलैप डेफिनेटली है, बट आई डोंट सी नो मेरिट इन द डिस्कशन कि इसकी जगह उसको, उसकी जगह वो नहीं। Understood. Okay.
You mentioned, sir, specific indications in your clinical practice now, let's say over the past 7, 8, 10 years, specifically using cannabinoid medicine. क्या आप थोड़ा इस पे expand कर सकते हैं that what are the specific indications, disorders, diseases जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि cannabinoids are beneficial? See, few things I have not used it as a monotherapy. मैंने सिर्फ Okay. वही दवाई नहीं दी है. जी. So when you say monotherapy, just for general understanding, अकेली सिर्फ दवाई. अकेली दवा नहीं दी है, ठीक ठीक है, है. और भी चीजों के साथ. हाँ तो ठीक है ना, मैं थोड़ा सा उसको अगेन एक्सपैंड करने की कोशिश करूंगा कि मेरे जो जिन पेशेंट्स को मैंने दिया है और उसके अंदर, तो पहली चीज तो मैंने कभी भी अकेली कैनाबिनॉइड्स नहीं दिया अभी तक. दूसरा, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो अर्बन पॉपुलेशन के साथ रहा है, ठीक है ना, जिनको मैं पढ़ा सकता हूँ, समझा सकता जी. हूँ. सेमी अर्बन की तरफ मैं जाने की चाह रहा हूँ, बट अभी तक इट इज अर्बन. दूसरा, ये फर्स्ट लाइन भी नहीं कर रहा हूँ. फर्स्ट लाइन का मतलब कि पेशेंट पहली बार मेरे पास आया और मैंने पहली बार ही उसको दे दी, Alright. ठीक है. तो उसके अंदर मैंने कुछ दवाइयाँ दी या किसी और डॉक्टर से उसने काफी दवाइयाँ ले चुका है और उसको रिलीफ नहीं आया है, तब मैंने इंट्रोड्यूस की या मैंने एक दवाई दी. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट उसका बैकग्राउंड लेके चलते हैं. Understood, okay. सो उससे बैकग्राउंड में ये भी क्लैरिटी होती है कि मैंने बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड केसेस में नहीं दिया. दे आर कॉम्प्लेक्स केसेस which have been on all of them are chronic pain patient, लंबे साल, मतलब महीनों में भी नहीं, सालों तक. हाँ, सालों जिनको तकलीफ है. राइट. तो जिनमें मैंने दिया है दैट इज फाइब्रोमाइल्जिया, क्रोनिक वाइड स्प्रेड पेन, एब्डोमिनल पेन, पेल्विक पेन, माइग्रेन, हेडेक्स. माइग्रेन तो एक लेवल के बाद क्रोनिक माइग्रेन वाले टाइप्स हो गए, कुछ कैंसर पेन के पेशेंट्स में. So these are the specific areas where you've seen. हाँ, that मतलब is because these are challenging conditions. हाँ, जिनके अंदर हमारा जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, सेकंड, बिकॉज अभी भी ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के लेवल पे नहीं आया है थ्रू एनी गाइडलाइंस, ठीक है ना, तो पहले पे नहीं दिया है, बट दीज आर द थिंग्स वेयर आई हैव ट्राइड. All right, okay, fine. And you mentioned that when it comes to pain medicine and practice of, let's say, pain management specifically, you look at a patient holistically. And you've already mentioned, but I'm going to just make this a more सटीक question, कि दर्द के अलावा और आपको समझ में आता है कि cannabinoids में other adjunct benefits हैं. Are they more important in a way than their pain management sort of application? नींद की आपने बात करी that it assists people to sleep better, mood improvement हो गया. Are those sort of peripheral benefits or are they almost the reason why the pain is being managed better? देखिए ना, उसमें ना एक क्लासिकल चीज होती है, जब पेशेंट बहुत टाइम तक पेन में होता है तो वो क्लासिकल ना अंडे और मुर्गी वाली बात हो जाती है. कि पेशेंट को पेन ज्यादा हुआ और वो अपसेट हो गया, या वो अपसेट हो गया या नींद नहीं आई या एंग्शियस हो गया और पेन ज्यादा हो गया, तो वो एक अनसुलझी गुत्थी है, ठीक है. सो हम अगेन एक एक करके नहीं देख सकते. सो जब हम पेशेंट को, इस तरह के पेशेंट्स को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, तो वी ट्राई टू सपोर्ट देम इन पेन एंड ऑल्सो ट्राई टू हेल्प देम विद द अदर साइकोलॉजिकल इश्यूज लाइक स्लीप, लाइक अ बिट ऑफ एंजाइटी, रेस्टलेसनेस. सो अगर ये कॉम्बिनेशन बहुत प्रोमिनेंट है, दोनों ही बहुत प्रोमिनेंट है, या पेन के अंदर ये जो पैराफेरिलिया या उसके जो बाकी चीजें हैं बहुत प्रोडोमिनेंट है, उस सबसेट ऑफ पेशेंट्स में कैनाबिनॉइड्स डेफिनेटली हेल्प अस. राइट. क्योंकि होता क्या है ना, आप खुद सोचिए, आप दर्द में हैं और आपको नींद भी नहीं आई, तो आपका दर्द बढ़ जाएगा. राइट. तो उसके अंदर अगर हम कैनाबिनॉइड्स देते हैं तो वो पेन पे भी काम कर रहा है, वो स्लीप पे भी काम कर रहा है. स्लीप इंप्रूव हो गई, पेन भी इंप्रूव हो गया, प्लस एडेड बेनिफिट ऑफ बेटर स्लीप हो गया, तो पेशेंट का ओवरऑल सिम्टम्स बेटर हो. नींद बेहतर हो गई, शायद आपका एंजाइटी घट गया, या एंजाइटी घट गया उससे नींद ज्यादा अच्छी आई, उससे मतलब इट्स ऑल लाइक अ कनेक्टेड फीलिंग. Exactly. Because in the very beginning you said pain is a feeling. हाँ, तो वो फीलिंग जो है ना वो बेटर होने लगती है, और उसके बाद क्या होता है ना, then the patient gets on to the track of getting better. If I can ask specifically about your practice, sir, at the Delhi Pain Management Center, you being obviously a practicing anesthesiologist and pain specialist, but are there other non-surgical sort of practices that you incorporate? Like you mentioned, sort of counseling, psychological counseling. Is counseling, physiotherapy, are all of these sort of part of specialized pain management practice? Yeah, definitely. They definitely have a role. So, for example, in any pain condition, I always tell the patient that I am not a surgeon, so I am not looking for a perfect scan. मुझे स्कैन से मदद मिलती है,
बट मैं कोई इंटरवेंशन करके आपका स्कैन ठीक हो भी सकता है, मोस्टली ठीक हो जाएगा, बट मैं दोबारा स्कैन नहीं कराऊंगा देखने के लिए कि स्कैन हुआ कि नहीं। मैं ये चाहना चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी में वापस लौट पाए कि नहीं विद सर्टेन गुड हैबिट्स। ठीक है ना, आपको अपनी जिंदगी को एक प्रोडक्टिव तरफ जाना है। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट प्रोडक्टिविटी, it is not only professional productivity, I am talking about social productivity, interpersonal relationships, everything has to go in sync in a way that you become more functional। और उन सारी functionality के लिए you need a psychotherapist या psychological intervention। So as pain physicians we do psychological interventions also, which is called cognitive behavioral therapy, which we commonly do। Okay, fine, it is very much part of the practice का part है। दूसरा, then there are physical therapists involved also, just to make the patient more functional। कि भाई दर्द तो कम कर दिया, अब उसका फायदा तो उठाओ। बिकॉज दर्द की वजह से आपकी मोबिलिटी ये सब बहुत इम्पैक्ट, स्पेशली फॉर क्रॉनिक। क्योंकि देखिए आप काम पे नहीं जा पा रहे हो। अब इंडिया में आप और मैं कहीं भी देखें, हम दिहाड़ी मजदूर हैं, रोज कमाते हैं तभी पैसे, राइट? सो दैट साइकी इवन फॉर अस नॉट एबल टू अटेंड वर्क बिकॉज ऑफ सम मेडिकल कंडीशन, इट स्टार्ट्स प्लेइंग ऑन अस। एंड इफ इट हैज बीन देयर कि मैं 100% नहीं दे पा रहा हूँ, 80% पे ही रुक रहा हूं, तो आपको प्रेशर अंदर से महसूस होने लगता है कि अब मैं ये भी नहीं कर पाता। वो एड्स टू योर एंजाइटी, राइट? सो मेरा हमेशा या वैसे भी पेन का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप अपने दर्द को ठीक करिए, ठीक करने के बाद आगे बढ़िए। आप ये बोल रहे हैं, एक चीज मुझे सोच में आ रही है कि आई डोंट थिंक दैट वी रियली हैव इवैल्यूएटेड बोथ द इकोनॉमिक बर्डन and the psychological and the social burden of pain at a national level. Really, if there could be a 10% population level improvement in reduction of pain, that might lead to a very significant, output. अगर हम सिर्फ आर्थिक आउटपुट की बात करें तो क्या पता फ्रॉम ऑल, आजकल हॉर्मुज चल रहा है और ईरान वॉर चल रही है, बट these are things which don't enter the policy conversation very often, even though it impacts everybody। यही बात, पेन दिखता नहीं है, प्रूफ करना ही मुश्किल है, ये एक एक्सपीरियंस है। यस, कंपनी ड्रिवन नहीं है। अब मैं एक बात बताऊं, आप एक कैंसर, किसी भी कैंसर के लिए दवाई ले आइए और सिर्फ बोलिए कि 10% चांसेस है और एक्स अमाउंट की है, पेशेंट हाथों हाथ लेगा। यस, बिकॉज 10% इज अ ह्यूज थिंग फॉर देम। कंपनी वालों का भी पुश है, गवर्नमेंट के लिए भी स्टैट्स है। बिकॉज प्रॉब्लम क्या है कि जो आपने राइटली पॉइंट किया, हमारे पास पेशेंट के पेन कितने लोग सफर कर रहे हैं है ही नहीं। रफ एस्टिमेट है कि 25-26% है ऑफ द पॉपुलेशन सफरिंग फ्रॉम पेन, व्हिच इज इंपैक्टिंग देयर डेली लाइफ। और मोस्टली जो जिनको इंपैक्ट कर रही है ना जी, वो डेली वर्क, मतलब वो वर्किंग पॉपुलेशन है। तो इकोनॉमिक बर्डन तो आप अलग, बिल्कुल, प्लस हेल्थ के ऊपर बर्डन सो अलग, साइकोलॉजिकल, पर्सनल, सोशल, वो तो अलग है। अगर हम प्योर पैसों की बात करें तो वो बंदा काम पे नहीं जा रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी इंडियन इकोनॉमी में 6 ट्रिलियन कहां से बनेगा अगर वो काम पे नहीं जा पा रहा है। अगर जा भी पा रहा है तो उसकी एफिशिएंसी कम है, प्लस द बर्डन दैट ही इज पुटिंग ऑन द हेल्थ केयर सिस्टम व्हिच इज ऑलरेडी क्रम्बलिंग। और उसकी वजह से क्या होता है कि द क्रक्स भी नहीं है हॉस्पिटल की। हमने बहुत बड़ा कैंसर हॉस्पिटल खोला, हमने बहुत बड़ा, एवरीबडी, इवन द कॉर्पोरेट्स, इवन द गवर्नमेंट सेटअप। सो उनका फोकस उन चीज़ों पे है जो कि टेंजिबल है, जो कंपनी ड्रिवन है, जो फैंसी और सुनने में, दिखने में अच्छा लगता है ना। अब मैं बोलूं कि नहीं, मैं तो बात करूंगा पेशेंट से, तो दैट डजंट सूट। तो दैट इज व्हाई इट्स अ एक्चुअल स्ट्रगल फॉर chronic pain patients and chronic pain physicians to create that kind of a thing, and these initiatives do help us in a long way where we are actually कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि आपका imagination है, पेन है, कमी हम में है, कमी हमारे सिस्टम में है कि हम आपको वो प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे, सपोर्ट भी नहीं करवा पा रहे, आंसर्स भी नहीं दे पा रहे कि भाई क्यों नहीं है भाई हमारी टेक्नोलॉजी में कि हम अभी भी कोई फंक्शनल चीजें नहीं ला पा रहे हैं जिससे कि मैं एक्चुअली आइडेंटिफाई कर सकूं कि ये कंडीशंस हैं। What you're saying, doc, to me this speaks to the fact that probably असल में अगर इसको आप वॉर फुटिंग पे देखो तो हर PHC पे एक पेन क्लिनिक होना चाहिए, क्लिनिक होना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र में, अर्बन एरियाज, every hospital actually should have this, which will probably reduce their burden, their patient management burden also very very significantly, right? I think वो तो बहुत ज़्यादा, मतलब it will be too much because in country, बट क्योंकि हर किसी को होता है, मतलब कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। सेंसिटाइजेशन इज बेटर, क्योंकि जो आपने एक शुरुआत में बात कही थी ना कि गए काउंटर पे दवाई ले ली, वो बहुत डेंजरस ट्रेंड है। अगर आपको वो ट्रेंड रोक सके और हम जो कि हमारे ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, सी हम यहाँ पे एक एसी रूम में
कंट्री के कैपिटल में बैठ के बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन जो ग्रास रूट पे काम कर रहा है अगर उनको सेंसिटाइज किया जाए, सेंसिटाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम MBBS लेवल। हमारे में बड़ी मुश्किलों से हमारी सोसाइटीज़ ने मिलके एटलीस्ट उसको एक पोस्ट ग्रेजुएट पार्ट का बनाया है। बट अगर हम उसको, आई थिंक हमारी सोसाइटीज़ काम कर रही हैं, अगर हम उसको एक MBBS लेवल, ग्रेजुएशन लेवल सेंसिटाइजेशन करें, नर्सिंग लेवल सेंसिटाइज, बिकॉज अगर हमें वेस्टर्न से कॉपी करना है वहाँ पे भी डॉक्टर्स का क्रंच है, तो वहाँ पे पेन नर्सेज हैं। हम अगर अपने पैरामेडिक्स को इनके बारे में सेंसिटाइज कर सके, देन वी विल बी एबल टू एक्चुअली गो डाउन, ब्रिंग अबाउट दैट चेंज, जिससे कि हमारे पास क्या होता है ना कि अब हमारी भी लिमिटेशंस है, तो एटलीस्ट द रेफरल टू द हायर टर्शरी सेंटर विल बी मोर अप्रोप्रिएट। Fair. Makes sense that sensitization and including with the existing, paramedical fraternity. Exactly. Just want just dial back again on cannabinoid medicine. We've spoken and you've shared your insight on what are the potential indications, areas where you have seen benefit. But ये भी जरूरी है समझना इसके drawback क्या है, what are some of the safety precautions, कोई ऐसे लोग हैं जिनको ये दवा नहीं लेनी चाहिए, how, just from a general awareness point of view. देखिए एक ना बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसीलिए हिस्ट्री और इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू एडिक्शन इट इज़ अ टेंडेंसी। I would not like to name the drug, but very recently I came across a patient, a very unlikely patient who is addicted to the famous anti-obesity drugs which is running in the market. 60-year-old, मतलब आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि यार ये क्यों obsessed है about the weight. And if I may say, sir, when you say addiction, like physical addiction, like there is every physical, physiological, psychological, उसको पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, बट वो 2 महीने, पिछले 2 साल से स्ट्रगल कर रहा है, 3 महीने लगाता है, 2 महीने छोड़ देता है, फिर 3 महीने लगाता है, 2 महीने छोड़ देता है. So the biggest problem, the biggest challenge, the biggest thing is this is a big red flag. और मुझे पता है कि मैं उसको ना तो ओपियोइड प्रिस्क्राइब कर सकता हूँ ना कैनाबिनॉइड्स कर सकता हूँ, बिकॉज whatever is he has a tendency of abuse. All right. So as a clinician, आपने ऑनलाइन फोन के हाल ले लो CBD नहीं होता है. Very hard, sir, but how do you determine at a patient level? बात करके मतलब वो तजुर्बे वाली बात हुई that you are able to परखो. नहीं, तजुर्बे की बात नहीं है ना. आप सिंपल पूछ सकते हो अगर आप क्या लेते हो, राइट? तो दे विल कम अप, और यू व्हेन यू गिव देम मेडिसिन, एनी मेडिसिन दैट आई गिव, आई विल आस्क देम, डू यू स्मोक, डू यू हैव अल्कोहल, सो व्हाट इज योर एवरेज कंजम्पशन. So those are the ways to determine. हाँ. दूसरा, तो पेशेंट आया तो ही वाज विजिबली श्रंकन इन साइज. Yes. तो मैंने कहा भाई ऐसा क्या हो गया, मैं X दवाई ले रहा हूँ, आई डोंट वांट टू नेम दैट. Fair. ठीक है ना. तो मैंने कहा क्यों ले रहे हैं आप 60 प्लस हैं, मसल वैसे ही नहीं होती है, आप वजन तोड़ने के चक्कर में आपने अपनी मसल की भी you have ऐसी तैसी कर दी, आप क्यों कर रहे हो? Then he opened up. So अब if you are keeping your eyes and ears open, अब उसका, that is why I always say the old, though it is the youngest branch of medicine, but it is very old school in its mindset. हिस्ट्री जब तक आप लेते नहीं हो, एग्जामिन जब तक आप, मैं अपने ट्रेनिंग्स को भी बोलता हूँ, जब तक आप हिस्ट्री नहीं लोगे, जब तक आप पेशेंट के साथ एग्जामिनेशन नहीं करोगे, टाइम स्पेंड नहीं करोगे, आपका इंटरवेंशन काम नहीं करने वाला है. And that is the limitation online, this, that and the other, जो कोविड के बाद से काफी चला है. बट एक बार तो देखो कम से कम, राइट? एक बार it's different in person. हाँ. अब मैं जैसे आप जैसे जहाँ पे थी, मैं उनको बता सकता हूँ कि उनको क्या प्रॉब्लम होगी, बिकॉज ऑफ द पोस्चर दैट दे आर मेंटेनिंग, व्हाट काइंड ऑफ वीकनेस दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम. सो वही चीज मैंने कहा ना, तो ये आपको क्लिनिशियन को पकड़ना पड़ेगा कि ये बंदा सही है, कि जो जिसके अंदर पोटेंशियल है. सो दैट इज वन बिग थिंग. This is a big red flag. There is, in this case, you will not prescribe them any sort of drugs which have that thing. That is one. Second thing is, देखिए physiology different है. So what I generally say is कि कभी भी अगर कैनाबिनॉइड स्टार्ट करना है, रात में स्टार्ट करो, सैटरडे संडे को स्टार्ट करो, नाइट डोज से स्टार्ट करो. Okay. The biggest thing is कि एक तो थोड़ा सा कई बार सेडेशन होता है, बट ग्रेजुअली उसके साथ सेटल हो जाता है. Okay. थर्ड थिंग इज थोड़ा स्लोनेस हो जाती है. कई पेशेंट्स ने कहा है कि मेरे को ना थोड़ा सा स्लो हो जाता है. Like cognitively, हाँ, स्लो हो जाता है. कॉग्निटिव इज अ टेक्निकल वर्ड, बट या कॉग्निटिव थोड़ा सा हो जाता है. सो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर बहुत कोई कंसंट्रेशन का काम करते हैं तो मत करिए. बट अदरवाइज इफ यू आर सीइंग
दो इफ यू गो थ्रू द लिटरेचर, अगर आप पढ़ेंगे उसके बारे में इंटरनेट पे, तो दे विल से कि अब्यूज है, अब्यूज है, अब्यूज है. बट आई पर्सनली फील कि अगर आप पेशेंट को सही करेंगे तो ना तो ओपियोइड अब्यूज करेगा ना ये करेगा, बट आपको ऑब्वियसली क्लिनिक. Fair. All right. आपने already mentioned कर दिया sir, you know, that was my follow-on question, that side effects, but you're saying that these are some of the common side effects. दूसरी चीज, एक चीज और भी है, नॉर्मल पेन किलर जो होती है ना, जैसे आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनाक, इनके साइड इफेक्ट्स जो होते हैं वो देर में भी होते हैं. वो थप्पड़ मार के जाते हैं और बाद में असर आता है, मतलब किडनी के लिए हार्श होते हैं. इनमें जो भी है इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है, उसी टाइम आएगा. It's immediately prevalent, whatever. अगर आपको सिडेशन आती है, यू गेट अ कॉल की डॉक सिडेशन ज्यादा हो रहा है, तो आई से स्टॉप इट. Okay, fine. 2-3 दिन में ठीक हो, 2-3 दिन, 1 दिन में ठीक हो जाएगा. द बिगेस्ट प्रॉब्लम बताऊं क्या है राघव, इसमें प्रॉब्लम होती है पेशेंट की एक्सपेक्टेशन को मीट करना. अगर आप मुझे रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम बोलो ना, कि आप एक अमाउंट ले रहे हो विच इज ठीक ठाक कॉस्टली, तो पेशेंट को उम्मीद होती है कि मेरा कुछ डॉक्टर ने नई दवाई दी है तो मुझे इतना आराम मिलेगा, कुछ होएगा. जब वो कुछ होता नहीं है ना, देन उसको जस्टिफाई करना मुश्किल होता है. बट दैट टाइम आई एम वेरी ऑनेस्ट दैट इफ द मेडिसिन इज नॉट गिविंग यू रिलीफ फॉर से 20-25-30 दिन, तो बंद कर दो. And that as a professional, you understand, sir, even for all standard indications and interventions also, some percentage of the population will respond, some एग्जैक्टली, मैं तो उसको मान नहीं रहा हूँ, बट मैंने वही इसीलिए तो मैंने उससे स्टार्ट किया कि पेशेंट्स आर वेरी फॉरगिविंग. पेशेंट आपको कहेगा कोई बात, आपने ट्राई तो किया, आप ऑनेस्ट तो किए थे, और आप उसका ऑनेस्ट फीडबैक लो और अपनी प्रैक्टिस को इंप्रूव करो. दिस इज हाउ इट वर्क्स. Absolutely. And also because mostly you're saying it's chronic conditions, तो थोड़ा तो वो expectation. और फर्स्ट लाइन भी नहीं है. और आपको एक चीज और भी इंटरेस्टिंग मैंने बोली भी थी कि वो फर्स्ट लाइन भी नहीं है. ऐसा नहीं है कि पेशेंट आया और मैंने दिया, राइट? नहीं, वो काफी दवाइयां खा चुका है, कुछ हो रखा है, देन आई एम गोइंग. और एक चीज और, पीपल अगर डॉक्टर सुन रहे हैं या वैसे, कि अगर कोई पेशेंट आके, हम बात कर रहे थे अब्यूज की, कहे कि मुझे यही चाहिए, Yes. एक तो आपने दूसरा दिया और दूसरा के नहीं डॉक्टर साहब मुझे ना यही, आई हैड वन पेशेंट हु हैड कम फ्रॉम यूएस, ही सेड वहां पे मैं खाता था, मुझे यही चाहिए. दैट इज अ बिग रेड फ्लैग. Yes, absolutely, sir. We find it very strange क्योंकि कोई और आके तो नहीं बोलता है मुझे वही वाला सिट्राजीन का ब्रांड चाहिए. The doctor decides what medicine is appropriate or not. So this is a challenge with cannabis. क्योंकि लोग मतलब वाकिफ हैं. नहीं, वो वाकिफ के अलावा जी आप हर मेडिसिन के साथ है. देखिए, अब्यूज का ना कोई मतलब क्या सरोकार नहीं होता. फॉर एग्जांपल, यू एंड मी आर आल्सो एडिक्टेड टू कॉमन सॉल्ट एंड शुगर. Absolutely. Yes. Caffeine, salt, very strong addiction. शुगर और नमक आप छोड़ नहीं सकते. कोई भी दवाई अगर वो बोलता है नहीं डॉक मुझे तो यही दवाई चाहिए, इसी फॉर्म में चाहिए, देन इट इज अ बिग रेड फ्लैग. Understood, sir. That's very useful. Two questions looking at the future as a means to wrap up our conversation also. What, in your view, is the future of cannabinoid medicine? What are, in a way, or the reverse question would be, what are the gaps? And so how do you see this area evolving? टू गैप्स हैं जी. पहला गैप्स ये है कि accessibility, access to the drug is less because of the cost. जी. ये पेशेंट को समझाना बहुत मुश्किल है कि भाई ये तो मैं कॉलेज में अपने घर पे उगा लेता था, अब मेरे को आप इतनी दवाई इतनी छोटी सी दे रहे हो और इतना पैसा ले रहे हो. सो दैट इज वन. सो अगर हम खुद ही उगा रहे हैं, सब कुछ इंडिया में है, कुछ भी बाहर से नहीं आ रहा. आई कैन अंडरस्टैंड अ ड्रग जिसका पेटेंट है एंड ऑल ऑफ दैट, अगर वो बाहर से आ रही है समझ में आता है. जब इंडिया में इन हाउस बन रही है तो कॉस्ट इज समथिंग विच वी हैव टू डू. सेकंड आई स्टिल सी, आई थिंक इट विल टेक 1 maybe 5-7 years before we get the confidence in the molecule. टाइम लगेगा, स्टिल बेबी स्टेप्स. अभी वो थर्ड लाइन है, थर्ड से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट. अगर सब कुछ सही चला और टिक बॉक्सेस क्लियर हुए तो दैट इज वन थिंग कि वो ड्रग हमारी पॉपुलेशन लेती कैसी है इन द लॉन्ग रन, जिससे कि हम उसको पहले प्रिस्क्राइब कर सकें. Understood. So that only clinical evidence over a period of time can substantiate. There is no other way for you to know. These are the two basic की कॉस्ट. और दूसरा अभी भी डर लगता है, बिकॉज होता क्या है ना कि आई थिंक वेस्टर्न पॉपुलेशन में और जब भी मैं मिलता हूँ किसी से, तो हम एक मॉन्स्टर को दूसरे मॉन्स्टर से रिप्लेस नहीं कर सकते. Yes, fair. ठीक है ना. अगर हम इतना ओवर इंथुजियाज्म में चले जाएं कि भाई नहीं ये तो ऐसा नहीं है. खास करके मैं पेन के बारे में बोल सकता हूँ कि पेन में इतनी सिंपल चीज़ें होती नहीं, खास करके क्रोनिक पेन में, राइट. तो उसके अंदर मैं बोल दूँ कि ये करेगा और एकदम सा होगा, ऐसा नहीं होगा. सो एनी, अगर टू बी वेरी विदाउट साउंडिंग एरोगेंट और एनीथिंग,
I can say anybody who is claiming कि मैंने ये दवाई दी और 100 के 100 ठीक हो गए, he's not doing his job, he's not being honest. क्योंकि chronic pain patients are a special set of patients which will have their own unique challenges. जो claim कि मैंने सब कुछ किया, चाहे कुछ भी हो, interventions हो, दवाइयाँ हो, psychological interventions, CBD, cannabinoids, और even for that matter opioids, और मैंने सबको दिया, 100 को दिया और 100 के 100, ऐसा नहीं होने वाला है. Fair. Some people will not respond adequately. Whatever. A नहीं तो B नहीं तो there are 10-15 options. कुछ ना कुछ चलेगा. मैं इसको ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि नहीं करेगा, बट मैंने ये दिया और ये तो 100 वाला है. That doesn't work. And then final question, speaking about your area of specialization and pain management overall as a practice, where do you think we are headed, and what are the gaps that potentially need to be filled when it comes to enhancing awareness of this specialized practice area? See, ये ना बहुत लंबा जवाब हो जाएगा. In nutshell, what I have to say, दो चीज़ें मैं कहूँगा. थोड़ा सीनियर हूँ तो अपने कलीग्स से भी बात कर सकता हूँ. Firstly, as a doctor, क्योंकि मैं I always start with our responsibility. Our responsibility, we have to be honest as pain physicians. That honesty has to come. What you can deliver, promise. Don't promise the moon. Be realistic with your expectations to the patients. बहुत ईमानदारी से पेशेंट को आप क्या डिलीवर कर सकते हैं, तो that will at least give a good name to the specialty. कि बेईमानी नहीं है, ये बेईमान नहीं है, they are honest. दूसरा, अगेन डॉक्टर की ये सब कुछ मैं ठीक कर सकता हूँ ऐसा नहीं है. अपुनिच गॉड है वाला फिनोमिना नहीं होना चाहिए, राइट? Regarding the other thing, initiative like these, there has to be awareness regarding the specialty. That is one thing which I feel, that initiative like these podcasts, and where people talk and discuss about it. And one more thing I will request the patients, though I try to do it at a very small level with my patients, they should come out and tell. I am treating a few of quite influencers and everything, but they are not very open when it comes down to chronic pain and things, because they want to carry that image which is very contrary to the Western population. Western population में वो ज़्यादा बताते हैं, हमारे वाले में खुल के बताते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे वो बताते नहीं है. तो those kind of awareness initiatives are the way forward where we can create awareness and try to reach the patient. अभी भी मैं बताऊँ, अब जिस तरह का जो है, अभी भी हम बहुत एक अर्बन किस्म, very few of my colleagues are actually working in the rural setup. Sure, sir. We are still a very urban branch. I really want, because यहाँ पे ना choices बहुत है, वहाँ पे रूरल इंडिया में ना choices नहीं है. This is something which my mother talked about, because we come from a semi-urban rural kind of population. So तब उन्होंने कहा कि बेटा अभी तुम भी ना बड़े शहरी डॉक्टर हो. अभी तक जहाँ पे हिंदुस्तान का जो दिल बसता है वहाँ पे नहीं. तो that penetration has to go in कि yes, there is a doctor who can help me with my pain non-surgically. जिंदगी मतलब बेटर कर सकते हैं, बदलने से ज़्यादा बेटर कर सकते हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको होप दे सकते हैं, उम्मीद दे सकते हैं कि ये जो लंबे समय का दर्द है जो मेरी जिंदगी को असर डाल रहा है उसको बेटर कर सकें. Thank you so much, Doc. I think you have been, and Delhi Pain Management Center has also been a real pioneer, and वो दिखता है पिछले 3-4 साल में. You see more signboards, pain management, pain clinic. But आप ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हो, probably tier 2, tier 3 towns also currently do not have dedicated pain management centers or pain management clinics as such, right? मतलब अभी भी बहुत दुक्का होंगे. So it is not just rural, but even urban, peri-urban, in smaller cities, there is a lot potentially to build. Appreciate your time, Dr. Saab. Thank you so much for coming here, for explaining to us in such a simple way, and hopefully we are able to contribute to the effort of increasing awareness of how to manage chronic pain in particular. Thank you once again, Dr. Saab.